Are you constantly falling ill, or your business is failing, or you are not able to make money? Whatever spell you do is not working, your money is blocked, you are not able to come up in life, your relationships are failing. Is this happening to you? Well, if this is, then there is one reason for that which you need to know. क्या आप हमेशा बीमार होते हैं, या आपका बिजनेस हमेशा फेल हो रहा है, या फिर आपका कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या आप हमेशा झगड़ा करते हैं घर पे, या आपका कोई भी स्पेल आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आपका मनी ब्लॉक्ड है कहीं पे, आपका रिलेशनशिप्स फेल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इसका एक कारण है। चलिए आज का वीडियो इसके बारे में है। सो टुडेज वीडियो इज अबाउट दिस, व्हाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन टुडेज वीडियो। So today I'm going to show a spell here. It's not actually a spell. It is something which will help you find out if you have been hexed, cursed, or anybody has done black magic on you. It's all the same thing. So if you want to find out if somebody has done black magic on you, you can use this technique. You can see on my altar I have one red spell candle and one black spell candle. And there is one tray there which I have kept aluminium foil, covered it with aluminium foil. In one cauldron I have some herbs which I have lit and there is smoke there. So all this is whatever you want you can keep. If you keep spell candles, it's very good for you because you can keep using it. You can keep using it again and again to find out the for others or for yourself. The same technique you can keep on doing. And if you do one time and if you find there is some fault in it, if you find that there is black magic, you have been affected by black magic, then you can do the remedy. The remedy I am not teaching in this video, but it is in my paid class. You can do the remedy. Then after that, once the remedy is done, after that time limit is over, then you can again repeat this method to find out if the black magic is gone or if it is still there. So for that purpose, you can use these spell candles if you have them. Repeatedly, you can use them. And you can use in other spells also. That is why we always recommend spell candles, because normal candles, if you use, you have to throw it away after one spell. Spell candles you can keep using, repeatedly using for as many spells as you want, after snuffing them out after each procedure. After each ritual, you just need to snuff them out. So that is the only difference. Now, so how do you know that somebody has done black magic on you? There are many signs of black magic. One is that you are constantly falling sick. Another is that you are not able to come up in life. Whatever you do, you are failing. Your businesses fail, your money is blocked, you are not able to concentrate on anything, you feel very low energy all the time. All these are signs of black magic. आज मैं आपको एक स्पेल दिखाने जा रही हूँ। वैसे ये असल में कोई स्पेल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि क्या आप पर किसी ने कोई काला जादू, टोना या शाप किया है। ये सब एक ही बात है। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या किसी ने आप पर काला जादू किया है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी ऑल्टर पर देख सकते हैं, मेरे पास एक लाल स्पेल कैंडल और एक ब्लैक स्पेल कैंडल है। वहाँ एक ट्रे भी है जिससे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके रखा है। एक कढ़ाई है जिसमें कुछ जड़ी बूटियां है जिन्हें मैंने जलाया है, और वहाँ स्मोक भी निकल रहा है। आप जो चाहे अपने पास रख सकते हैं। अगर आप स्पेल कैंडल रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बार ये टेक्निक यूज किया और आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि किसी ने कुछ किया है, तो आपको इसका रेमेडी करना पड़ेगा। तो इसका रेमेडी मैं इस वीडियो में नहीं सिखाती हूँ, वो मेरे पेड क्लास में है। लेकिन जब आप रेमेडी करते हैं उसके बाद आपको देखना है कि फिर से आपको देखना है कि ये हो गया कि नहीं। अगर ये काला जादू या टोना या शाप जो है वो निकल गया है कि नहीं, आपको टेस्ट करना है, तो आप ये टेक्निक फिर से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्पेल कैंडल्स यूज करो। अगर आप नॉर्मल कैंडल्स
कैंडल्स यूज करते हैं तो वो एक ही स्पेल पे आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको वो फेंकना पड़ेगा। अगर आप स्पेल कैंडल यूज करते हैं तो बार बार आप वो कैंडल यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेल पे यूज कर सकते हैं। आपके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि स्पेल कैंडल्स ही यूज करना। एक बार आप एक स्पेल पे यूज किया तो उसके बाद आपको बस ये थोड़ा स्नफ आउट करना है, बुझाना है, मतलब फूकना नहीं, बुझाना है, और कोई स्पून से या कुछ बर्तन से ऐसे उस पर डाल के स्नफ आउट करना है, तो उसके बाद आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने आप पर काला जादू किया है? काले जादू के कई साइंस होते हैं। एक तो है कि आप लगातार बीमार हो रहा है, दूसरे है कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, आप जो भी करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलता है, आपका बिजनेस फेल हो रहा है, आपके पैसा अटक गया है कहीं पे, और आप किसी भी चीज पर ध्यान नहीं रख सकते, आपका एनर्जी हमेशा लो होता है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। Now we have seen what all things we need for this. So you need one blessing oil, altar oil, or any divination oil, or you can use Hecate oil or even olive oil. And you need one black spell candle, one red spell candle, one cauldron. You need some camphor or frankincense for burning, one cup of clear water, and a glass of water. These are the things which you need. First of all, you need to smudge and clean your space, draw your circle, light the candles, and add oil to all the candles. Now here I have already lit the candles, so you cannot see me oiling the candles, but that is what you need to do first. अभी तो आपने देखा क्या क्या सामान चाहिए इधर, ब्लेसिंग ऑयल, ऑल्टर ऑयल, कोई भी डिविनेशन ऑयल, या फिर ये सब नहीं है तो सिर्फ ऑलिव ऑयल भी चलेगा। एक ब्लैक स्पेल कैंडल चाहिए, एक रेड स्पेल कैंडल चाहिए, एक कॉर्ड्रन चाहिए ये जलाने के लिए, और जलाने के लिए आपको थोड़ा कैम्फर या फिर फ्रैंकिंसेंस चाहिए, एक कप क्लियर वाटर चाहिए और एक ग्लास में पानी भी चाहिए। तो आपको पहले स्मज और क्लेंस करना है आपका स्पेस, ऑल्टर जो है, ये सब जगह आपको क्लेंसिंग करना है, आपको एक सर्कल बनाना है और आपको ऑयल्स लगाना है कैंडल्स के ऊपर, और उसके बाद आपको कैंडल लाइट करना है। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी लाइट किया है कैंडल्स, तो आपने नहीं देखा कैसे ऑयल किया है, लेकिन शायद आपको आता है कि कैसे ऑयल करना है कैंडल्स को। अभी तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल योर फेवरेट गॉड और गॉडेस। नाउ आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ सांता म्यूर्ते हियर। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपका जो भी पसंदीदा गॉडेस है या फिर गॉड है उनको बुलाना है। इधर मैं सांता म्यूर्ते का एग्जाम्पल दे रही हूँ। Okay, now I have kept the clear water there on the altar, and I will say a prayer to Santa Muerte to bless the water, holding my hands over the water. अभी मैंने वो कप रखा है जिसमें पानी है वो ऑल्टर पे, और मेरा हाथ ऊपर पकड़ के Santa Muerte को मैं एक प्रेयर कह रही हूँ कि हमारे वाटर को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि ये वाटर हमें दिखाएंगे कि हमारे ऊपर कुछ हुआ है कि नहीं। So let's say the prayer. Mother Mute, Holy Death, please come to my ritual. Bless this water I have kept. Mother Mute, Holy Death, I pray to you full of hope and trust. ये है प्रेयर, ये आपको ऐसे ही बोलना है, स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपने किसी और गॉड गॉडेस को बुलाया तो आपको उनको एक प्रेयर बोलना है ऐसे ही। मतलब ये है कि आप वो गॉड गॉडेस को बुलाते हैं ये वाटर जो है इनको ब्लेस करने के लिए। नाउ इफ यू हैव यूज्ड अनदर गॉड और गॉडेस फॉर दिस पर्पस, यू कैन कॉल दैट गॉड और गॉडेस एंड आस्क हर और हिम टू ब्लेस दैट वाटर for this purpose. That is to show us what we want to know. Now you add the 3 drops of oil which you have into the clear water, and then you again hold your hands on top of the cup of water and say the next prayer. अभी आपको वो ऑयल जो है आपके पास है वो उसका 3 ड्रॉप्स डालना है वो पानी में, और फिर से आपका हाथ ऊपर पकड़ के आपको सेकंड प्रेयर बोलना है। तो अभी हमने इधर सांता म्यूर्ते को बुलाया, इसलिए हम सांता म्यूर्ते को ही प्रेयर देते हैं। We are called Santa Muerte, so we are saying the prayer to Santa Muerte. If you have called some other god or goddess, use the prayer for that god or goddess the same way I am saying here. So the prayer is, Mother Muerte, Holy Death, please check if I have been hexed. I pray to you with full hope and trust. I offer you fine
वोडका एंड सिगरेट्स मदर म्यूर्ते होली डेथ। ये है प्रेयर। तो इधर हम मदर म्यूर्ते को ऑफरिंग दे रहा है वोडका और सिगरेट, ये इनका ऑफरिंग है। आपने जो भी गॉड गॉडेस को बुलाया आपको मालूम होना चाहिए कि उनका ऑफरिंग क्या है और वो ऑफरिंग भी उधर देना है। और इफ यू हैव कॉल्ड सम अदर गॉड और गॉडेस यू हैव टू नो द ऑफरिंग्स ऑफ दैट गॉड और goddess and then you have to give that offering there. Since I have called Mother Murte, which is Santa Murte, her offerings are vodka and cigarettes, so I am offering that. Accordingly, you have to do whatever is required. Now you wait for some time. Now wait for some time and see if the drops of oil are joining together. अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है और देखना है कि ये 3 बूंदें जो है ऑयल का ये एक साथ जुड़ रहा है कि नहीं। अगर वो 3 ड्रॉप्स एक साथ जुड़ गया इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है। Now if the 3 drops have joined together, it means that somebody has done something on you. If they have not joined together and they are staying separately like that as 3 drops, that means you have not been hexed, cursed or been done black magic. So it must be some other problem. अभी जो वो 3 ड्रॉप्स जो है वो अलग अलग है, एक साथ नहीं जुड़ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है। तो जब आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है तो ये एक साथ जुड़ रहा होगा, अगर नहीं है तो ये अलग अलग होगा। ये जो भी ऑयल उसमें डाला है ये 3 ड्रॉप्स अलग अलग होगा। ये है टेक्निक। सो दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट इफ somebody has done black magic on you or not. So if you have liked this video, please give a thumbs up and please do share our videos. Please do subscribe if you have not subscribed and please hit the bell icon to get notifications of all our videos. अभी आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को एक थम्स अप देना और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना क्योंकि तभी आपको हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।